morning. I don't know how else to keep you engaged than telling a story. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So, the request from my side would be whenever you have any questions, any queries, any thoughts, to put it in the chat box. It would be good if it can be an interactive session. And we all are teachers. We love some kind of response from the other side. Online platform limits the the amount and also the quality of interaction that we can have, but let's use this platform, this channel to its maximum, and make sure that this interaction uh, is two-way and not just one way. Anyways, I cannot teach you anything. We all are teachers. You are all qualified, experienced. So let's take this couple of sessions or these three sessions as an opportunity to discuss about something which is very pertinent, very very relevant to modern time, and something which has been existing in our shastras, in our knowledge for a very very long time, and maybe we never looked at it. Maybe I'm just saying, maybe we never looked at it like in that light or in that perspective. And a subject area which is uh, which is at the heart of our being, especially in this socio-economic environment, socio-political economic environment that man has been living since the days of agriculture, and uh, which has been studied in a very very elaborate manner, detailed manner by all our teachers of the past. And we are lucky, we still carry their legacy in the form of our behavior, in the form of our understanding, and also in the form of the texts, the writings that they have left. So this is the overall, I think, the introduction that I can give you right now, before even uh, before presenting you to the detailed scope and width of what the Shastra can do. Let's take a small story first, okay? So, ma'am, while she was introducing, she said that I am someone who specializes in Panchatantra. I don't know whether specializes or not, but I love the stories, and we kids, we all of us as kids have sometime or the other heard Panchatantra stories and have fond memories of some animal characters moving around, talking to each other, engaging in some fight, engaging in some conversations inside the jungle or outside a jungle that exist in our memories. So let's take this Sunday morning, like it used to be during the days of DD1 and DD2, to rekindle fond memories of storytelling, rekindle fond memories of animal characters. Okay, so we are 45 now, so including all of us. I request all of you for the next 15-20 minutes, just pay attention to the story. Just listen to the story as if it is the best entertainment or relaxation you can have on a Sunday morning where you are made to attend सेशन ओके ठीक है मैं हिंदी का भी उपयोग करूंगा बीच बीच में यूज हिंदी इन बिटवीन ओके मैडम या आई डू दैट या ठीक है तो बस कहानी सुनिए आराम से मजे से अगले 15-20 मिनट और फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं बात करते हैं ठीक है चलिए लेट मी शेयर द स्क्रीन जस्ट गिव मी अ मिनट please give me a confirmation if you are able to see the screen. Yes, sir. It is in process. Yeah. It Okay, is. ma'am. Yeah. It is Thank you. visible, sir. It is visible. Okay. Yeah. Thank you. Yes, sir. Good. Thank you. Thank you, everyone who could respond, whether it is through emojis or through reactions or through chat box or through voice calls. Thank you. Yeah. Thank you, everyone. Let's start. Okay. So, understanding Niti Shastra through Panchatantra. Let's start with a simple, very simple, casual little story. The hares and the herd of elephant. ठीक है खरगोश और हाथियों का झुंड इस कहानी से शुरुआत करते हैं
So I'll go with Hindi so that uh, the storytelling is very natural, and wherever required I'll pitch in with English. और आपको अगर भाषा में कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज बताइएगा, चैट बॉक्स में डालिएगा या फिर कह के बताइएगा. सर हैज समथिंग टू से ओवर हियर. पंचतंत्र in graphic novel in today's scenario. Yes, Prashant sir. Let's see how it goes. Okay. So कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, बहुत सालों पहले. ज्यादातर कहानी ऐसे शुरू होती है ना, लॉन्ग लॉन्ग अगो. बहुत सालों पहले एक दूर एक जंगल में एक हाथियों का झुंड रहा करता था. हाथियों का झुंड में करीबन 15-20 हाथी ऐसे थे. और ये जो हाथी है, ये अलग अलग किस्म के थे. कुछ छोटे हाथी थे, बेबी एलिफेंट्स, कुछ फीमेल, कुछ मेल, कुछ ओल्ड. सो इट्स अ मिक्स हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एंड दे वर लिविंग वेरी हैप्पीली इन द जंगल. बहुत खुशी से अच्छे से रह रहे थे. जंगल भी काफी हरा भरा था. नदियां थी, तालाब थे, पेड़ पौधे थे, पहाड़ थे. हाथियों को जो भी दरकार थी, जो भी जरूरत थी उनकी, पानी की, खाने की, रहने की सुविधा, सब कुछ उस जंगल में अच्छी तरह था. और हाथियों का झुंड वहां पे अच्छे से बसा हुआ था, फल फूल रहा था. और उसका कारण ये भी था कि उनका लीडर भी अच्छा था. लीडर केयरिंग था, लीडर ताकतवर था, उसमें बहुत ताकत थी. और शायद उस पूरे जंगल का सबसे ताकतवर नर हाथी था वो. इसका नाम था चतुर्दंत. ठीक है. हिज नेम वाज चतुर्दंत. चतुर्दंत बहुत ही शक्तिशाली. जैसे उसका नाम था, उसको 4 दांत थे ऐसे. मुझे दूसरा कोई इमेज मिला नहीं था ये इसके लिए, तो मुझे इंटरनेट पे यही इमेज मिला, तो इसको मैंने डाला. थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, बट लेट्स अज्यूम दैट यू कैन फिगर इट आउट. 4 दांतों वाला, बड़ा, ताकतवर और अपने झुंड के प्रति समर्पित ऐसा एक राजा था, जिसका नाम था चतुर्दंत. चतुर्दंत अपनी प्रजा का अच्छा ध्यान रखता था, और सारे लोग भी, सारे हाथी भी उसके अंडर सुरक्षित महसूस करते थे. तो ये था हमारा हाथियों का झुंड, अच्छे से हरे भरे जंगल में. 15-20 हाथियों का झुंड, जिसका राजा चतुर्दंत. सब कुछ ठीक चल ही रहा था. तभी क्या हुआ, भयंकर सूखा पड़ा. भयंकर सूखा. 1 साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल. और क्योंकि जंगल ऑलरेडी हरा भरा था और कुछ नदी तालाब में पानी फिर भी मौजूद था, तो 1-2 साल तो वैसे भी चला गया, दूसरा साल भी चला गया. बट तीसरा साल आते आते, 2 साल हो गए कोई बारिश नहीं. तीसरा साल आते आते नदी तालाब सूखने लगे, पेड़ सूखने लगे, मुरझाने लगे, छोटे जानवर मरने लगे, कुछ तो छोड़ के जाने लगे. जानवरों को समझ गया था कि ये जो सूखा है, ये कोई नॉर्मल सूखा नहीं है. ये 12 साल लंबा चलने वाला एक अकाल का टाइम. इज फैमिन, सिवियर फैमिन, एंड इट्स नॉट गोइंग टू गेट ओवर वेरी शॉर्टली. तो तीसरा साल चल रहा है, हाथी भी वीक हो रहे हैं. कुछ हाथी, 1-2 हाथी जो बूढ़े हाथी थे, तो मारे भी गए. इतनी गर्मी, इतना सूखा, खाने की किल्लत, सब सहन नहीं कर पा रहे. कुछ जानवर माइग्रेट हो गए. अब हाथी बेचारे सोचने लगे कि हम करें क्या, क्या करें. अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हम कब तक जीवित रहें. तो हमको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा. इतनी जल्दी हम इस घर को छोड़ के भी नहीं जा सकते. एटलीस्ट आज आसपास कहीं पानी का कोई स्रोत है, कोई खाने पीने का बंदोबस्त है. अगर ऐसा कोई है, कुछ मिल जाए, तो हमको आसानी होगी. इस बुरे वक्त में दिन काटना आसान होगा. सो फॉर दिस रीजन चतुर्दंत कॉल्स ऑफ इमरजेंसी मीटिंग. एंड ही समन्स 4 of his बेस्ट एलिफेंट्स, जो 4 सबसे अच्छे उसके मंत्रीगण थे, या फिर सेनापति, जैसे सेना में जो थे. 4 अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग एलिफेंट को उसने बुलाया और कहा कि देखो, हमको जल्दी से जल्दी कोई पानी का स्रोत ढूंढना पड़ेगा. अभी जो आखिरी 1-2 तालाब बचे हैं वो भी सूखे जा रहे हैं. तो आप चारों जो हैं,
वो अलग अलग दिशाओं में जाओ, एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। आप चारों अपने अलग अलग दिशाओं में जाओ और शाम तक, जहां तक जा पाओ जाओ, दोपहर तक, और शाम तक वापस लौटना और बताना है कि क्या कोई पानी का कोई स्रोत है जहां पे हम जा सके। तो चारों हाथी अपने बॉस का अपने बॉस की बात, चतुर्दंत की बात मान लेते हैं और चारों अपने अपने दिशा में चलने लगते हैं। सुबह निकलते हैं और शाम होते 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 एक एक करके सब हाथी लौटने लगते हैं। पहला हाथी आता है, कहता है महाराज कुछ नहीं मिला, दूर दूर तक कोई पानी का स्रोत नहीं। दूसरा आता है, कहता है नहीं महाराज मुझे भी कुछ नहीं मिला। तीसरा भी आता है तो निराश होके ही आता है कि महाराज मुझे भी कुछ नहीं मिला, कोई पानी का स्रोत नहीं। चौथा हाथी जो है, जो पूरब की तरफ, जो उत्तर की तरफ गया था, वो थोड़ा एक दो घंटे लेट लौटता है, मगर बड़ी ही खुशी की खबर लेके लौटता है। वो कहता है महाराज आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर, यहाँ पे लगभग लेट्स से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा तालाब है जो हमने यहाँ पे भी कभी नहीं देखा था। इतने सूखे भरे वक्त में भी उस तालाब में पानी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। वो बारिश से भरा हुआ तालाब नहीं है, बारिश के पानी से भरा हुआ तालाब नहीं है, वो तो एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, जो अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर है, जो बाहर आया है। और इस तालाब को लोग चंद्र सागर कह के पुकारते हैं। वहां पे आसपास बहुत हरियाली भी है, वहां पे रहने वाले जानवर भी बड़े खुश हैं। वहां का पानी बड़ा मीठा है, बड़ा फ्रेश है। महाराज यही वो तालाब थी शायद हमें जिसकी दरकार थी। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, चतुर्दंत भी खुश हो जाता है कि वाह बहुत खुशी की खबर लाई है। बाकी हाथियों में भी थोड़ी सी राहत की सांस रहती कि वाह चलो कुछ तो पानी का स्रोत मिला। तो चतुर्दंत सब हाथियों को बुलाता है और कहता है देखो एक अच्छी खुशी की खबर है, कुछ ही दूरी पर एक चंद्र सागर है, कल सुबह हम वहां जाएंगे। और जैसे कि कहा गया है जी भर के पानी, वहां बहुत सारा पानी है तो जी भर के पानी पिएंगे, जी भर के खाना खाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो कल सुबह हम सब साथ एक झुंड में वहां जाएंगे। सो दूसरे दिन सुबह करीबन जैसे 6-6:30 बजे चतुर्दंत आगे आगे और बाकी जो 15-20 हाथी हैं जो बच गए हैं वो पीछे पीछे चल पड़े। चलते 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 3-4 घंटे हो जाते हैं और लगभग 10-11 बजे के आसपास, यही यही टाइम पकड़ लीजिए चलिए, 10-11 के आसपास वो पहुंच जाते हैं चंद्र सागर। और सच में जैसे कि उस हाथी ने बताया था, चंद्र सागर इतना सुंदर था कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस सूखे के दौरान ऐसी कोई जगह आसपास भी होगी। पानी का स्रोत देखते ही सब उस पे कूद पड़ते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं। इतने इतने दिनों बाद उनको पानी का ऐसे स्रोत दिखाई दिया था। वो बेबी एलिफेंट्स कैसे खेलते हैं कीचड़ में, तो वो सब ऐसे कूदते हैं, खेलने लगते हैं, इधर उधर भागते हैं। हाथी भी यहाँ इस छोर से पानी पी रहे हैं, उस छोर से पानी पी रहे हैं, आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको खा रहे हैं, मजे से घूम रहे हैं। और 3-4 घंटे मानो बहुत मजे की, तृप्त हो गया मन, शांत हो गया मन, तृप्त हो गया, पेट भर गया, एक राहत की सांस ली और खुशी से झूमते हुए 3-4 बजे वो वापस लौटते हैं। ये चतुर्दंत सबको कहता है कि हम यहाँ वापस आएंगे, ये तो हमें पानी का स्रोत मिल गया है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही घर रहेंगे और जब भी जरूरत पड़े यहाँ आ जाएंगे, ये तो पास ही है। ये कहकर वो अपने घर वापस लौट जाते हैं और चल पड़ते हैं। ये जो 3-4 घंटे हाथी वहां बिताते हैं, मस्ती करते हैं, कूदते हैं, मजे से घूमते हैं और बहुत कुछ खाते हैं, इसका असर एक दूसरी प्रजाति पर बहुत भयानक होता है। चंद्र सागर के किनारे रहने वाले जो खरगोश हैं, जो बिल के अंदर रहते हैं, उनके अंदर आतंक फैल जाता है ये 3-4 घंटे में।
हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है। हाथी के पैर उस कीचड़ के अंदर, उस जमीन के अंदर गहरे गहरे घुस गए थे, और इतने गहरे जाने की वजह से बहुत सारे खरगोश अंदर कुचले गए, बहुत इंजर्ड हो गए, 10-12 तो मारे गए। और पूरा आतंक मचा हुआ था, मतलब बाहर जैसे इमेजिन कीजिए कि बाहर हाथियां कूद रहे हैं, हाथी कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती में है, खुशी का माहौल है। और जमीन के नीचे जो खरगोश हैं वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, मर रहे हैं। हाथियों के जाने के बाद ये बाहर आते हैं, जो बच गए थे वो बाहर आते हैं, रोते बिलखते, चिल्लाते, चीखते। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का खून बह रहा है, किसी का भाई मारा गया, किसी की माँ मारी गई। बाहर आते हैं, बाहर आके इकट्ठे होते हैं, 50-60 खरगोश इकट्ठे होते हैं। इनका भी एक राजा होता है। उस राजा के पास आते हैं, सब चिल्लाते हैं, चीखते हैं, महाराज बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये हाथियों के आतंक में मेरे घर में ये मारा गया, मेरा मेरा बेटा मारा गया, मेरा बच्चा मारा गया। महाराज भी देख रहे हैं, सबकी हालत देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं क्या करें। अब महाराज अपने मंत्रीगणों को पास बुलाते हैं और मंत्रणा करते हैं कि क्या करना चाहिए अभी। आपने देखा कि ये हाथी आए, इन्होंने पानी पिया, तबाही मचाई और चले गए। हम जानते हैं कि आसपास सूखा है और शायद ये दोबारा आए, तो हमें क्या करना चाहिए। Now, during this discussion between the king of hair and the ministers and the other wise hairs, there are some discussions which is happening. Okay, discussion देखते हैं क्या होता है। तो एक जो हमारा मंत्री है वो कहता है, महाराज हाथी बहुत डेंजरस होते हैं, इनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हाथियों के करीब जाना खतरे से खाली नहीं, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। एक शास्त्र में ये भी कहा गया है, see what they are saying, an elephant kills by a mere touch, a snake kills through merely sniffing, a king has only to smile to kill, a knave can kill even by paying honors, can just ignore that phrase, can kill even by paying honors। ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि देखो, हाथी के स्पर्श मात्र से जान जा सकती है, सांप सूंघ जाने पर भी मृत्यु हो सकती है। हाँ, हम कह रहे हैं ना सांप सूंघ गया है क्या, तो उसका राजा या बॉस या लीडर की मुस्कुराने से ही मृत्यु हो सकती है। एंड अ नेव, नेव मतलब ठग जो रहता है ना, वो एक ठग अगर वो प्रशंसा भी करे तो वो भी बहुत भयानक हो सकता है, बाय पेइंग ऑनर्स। ठीक है, हाथी का वजन बहुत होता है, स्पर्श उसका बहुत खतरनाक हो सकता है, तो बच के रहना चाहिए। सांप अगर इतना करीब आ जाए कि वो हमें सूंघ सके तो इंसान फ्रीज हो जाता है, डर जाता है, स्तब्ध रह जाता है, वो भी मृत्यु के समान है। और बॉस अगर मुस्कुरा दे, जैसे इमेजिन आपका हमारा कोई खड़ूस सा बॉस है, बहुत ही है, और वो दूर से आपको देख के मुस्कुरा रहा है, हमेशा खुशी की बात नहीं होती है, डर लगता है, हम सोचने लगते हैं अरे भाई क्या बात है, मुझे देख के क्यों स्माइल दिया, सब ठीक तो है, राइट। तो वो भी मृत्यु के समान मानी जाती है। और लास्ट वाला देखिए, जो ठग होता है, ठगने वाला होता है, चोर होता है, या फिर ऐसा होता है जो हमारा हानि चाहता है, उसके मुंह से निकलने वाली प्रशंसा भयानक हो सकती है। लोग अगर हमारी निंदा करें चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बुरा लगेगा, और क्या। बट अगर कोई हमारी तारीफ करे तो 2 बार सोचना चाहिए, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि तारीफ ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
चाहे वो हमारे बॉस के मुंह से ही क्यों ना निकले। नहीं, जब वीकेंड से पहले बॉस तारीफ करता है तो हमको डर लगता है ना, कुछ तो काम होगा वीकेंड। नहीं, ऐसा और भी है। So I'm not saying boss is equal to name in general. Okay, this is I will talk about it. So don't take it generally. So like that. So a knave can kill even by paying honors. कौन बोल रहा है ये? एक खरगोश बोल रहा है अपने राजा को कि महाराज हमें बच के रहना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं हाथियों से दूरी मेंटेन करना जरूरी है। ओके, तो महाराज कहते हैं आपका आपका पॉइंट तो सही है, तो क्या करें हम, इस अवसर पर क्या करें, करना चाहिए। तो एक और खरगोश कहता है, दूसरा खरगोश आता है और वो कहता है महाराज शास्त्र के अनुसार हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। शास्त्र कहते हैं forsake an individual for the sake of a family for the sake of a village for the sake of a state, and give up the whole earth for the sake of the self. अगर एक परिवार की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति की कुर्बानी देनी पड़े तो दे दो। अगर एक गांव की सुरक्षा के लिए एक परिवार की कुर्बानी देनी पड़े तो वो सही है। अगर पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक गांव की कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी सही है। और तो और अपने आत्मा के लिए, अपने खुद के लिए अगर पूरी पृथ्वी का त्याग करना पड़े तो वो भी सही है। ये हमारे Very शास्त्र, nice, sir. ये हमारी शास्त्र है। तो हमारे इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए, खरगोश कह रहे हैं हमारे समाज की सुरक्षा के लिए इस वक्त हमें इस जगह का त्याग कर देना चाहिए महाराज, वरना हम बचेंगे नहीं, ये हाथी दोबारा आएंगे। महाराज सुन रहे हैं, खरगोश के जो लीडर है वो सुन रहे हैं। एक और खरगोश कहता है कि महाराज मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, a king should for the self protection abandon the land without hesitation, although invariably beneficial, yielding all round prosperity and furthering the growth of cattle. जमीन कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, कितने ही धन धान्य से क्यों भरी ना हो, बहुत सारे पानी के स्रोत क्यों ना हो, कितना ही सुंदर गांव क्यों ना हो, कितना ही सुंदर शहर क्यों ना हो, राज्य क्यों ना हो, जरूरत आने पर रक्षा के लिए, स्वरक्षा के लिए, प्रजा रक्षा के लिए अगर जरूरत आए तो एक राजा को बेझिझक उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए जो राज्य बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही पानी से भरा हुआ है, सब कुछ है उस राज्य में, मगर अगर खतरा मंडराने लगे तब उस राज्य का भी त्याग करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जान बचेगी तभी आप उस राज्य के लिए दोबारा लड़ने के लिए तैयार रहो, वरना बेवकूफी। तो शास्त्र ये भी कहते हैं हमारे। तो हेंस महाराज, इन माय ओपिनियन ऑल्सो वी शुड लीव दिस प्लेस राइट नाउ। कुछ खरगोश ऐसे कहते हैं। तभी एक खरगोश उठता है और कहता है महाराज मैं इनसे सहमत नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि हमें छोड़ के जाना चाहिए, ये हमारी पुरखों की जमीन है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे खाने के लिए पेड़ पौधे हैं, हमें नहीं छोड़ के जाना चाहिए। और छोड़ के जाए कहाँ, आसपास तो आप जानते हो सूखा पड़ा हुआ है, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, हम जाके बाहर जाएंगे भी तो मारे जाएंगे, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं रहना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं मगर हम यहाँ रहे तो हाथी से कुछ ले जाएंगे, और हाथी का हम सामना कैसे करें, वो हाथी है, हम उनको मार नहीं सकते, हम उनको डरा नहीं सकते, हमारे पास ना शरीर है, ना औजार है, ना कुछ है, हम कैसे करें। तो खरगोश कहता है महाराज से, महाराज शास्त्र एक चीज कहते हैं हमारे, शास्त्र कहते हैं कि अगर बल ना हो तो बल होने का नाटक तो कर सकते हैं, अगर जहर ना हो
तो जहर होने की एक्टिंग तो कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, अ स्नेक इवन दो डिवॉइड ऑफ पॉइजन शुड स्ट्रेच इट्स हुड ग्रेटली एंड हिस ड्रेडफुली, whether the poison is there or not is immaterial. A mere expanse of the hood causes fear. सांप जहरीला हो या नहीं, ना जहरीला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सांप का फन उठा लेना ही सामने वाले को डरा सकता है। अब सामने वाले को क्या पता कि उसके अंदर जहर है या नहीं है। तो वो सांप भी होते हैं जो जहर नहीं रखते, मगर खतरा आने पर अपना फन जरूर उठाते हैं, क्योंकि वही सामने वाले के मन में भय पैदा करता है, और वो भय ही उस सांप का सुरक्षा कवच है। तो इसके लिए महाराज हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे जिससे हाथियों के मन में भय पैदा हो, डर पैदा हो। उनको पता चले ना पता चले कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो अलग बात है, बट हम एक कोशिश से उनको डरा तो सकते हैं, भय पैदा कर सकते हैं। अब महाराज सोचते हैं कि बात आपकी सही है, मेरे समझ में आ रही है, मगर हम ये करें कैसे? कोई है हमारे बीच जो अपनी बुद्धि बल से, अपनी अकल से ये कर पाए, अपनी सूझबूझ से ये कर पाए? तो सभी कहते हैं महाराज, इसको हैंडल करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा खरगोश चाहिए जिसके पास ये कला हो। कैसी कला? वाक कौशल की कला। कैसी वाक कौशल की कला? द मैन whose speech is measured, whose speech is always for the good, whose speech is wise and well wrought, who never speaks in excess and only after deep reflection, he is the one effective every time. ऐसा व्यक्ति हमारे काम आएगा जिसकी वाणी में, जिसकी भाषा में मधुरता हो, जो चुन के शब्द, जो शब्दों का चुनाव अच्छे से बुद्धिपूर्वक करे, जिसकी भाषा, जिसकी वाणी हमारे हित में हो, जो बुद्धिमान हो, जो ज्यादा ना बोलता हो, सही बोलता हो और सोच समझ कर बोलता हो। ऐसा अगर द मैन हु स्पीच इज मेजर्ड, मेजर मतलब चुन के, अच्छे से चुन के कितना बोलना चाहिए। हु स्पीच इज ऑलवेज फॉर गुड, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए। हु स्पीच इज वाइज एंड वेल रॉट, अच्छे से सोच समझ कर बोल रहा है। हु नेवर स्पीक्स इन एक्सेस, जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता। एंड ओनली आफ्टर डीप रिफ्लेक्शन, अच्छे से सोच समझ कर कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होने वाला है, ये सोच के ही वो बोलता है। ही इज द वन इफेक्टिव एवरी टाइम। ये व्यक्ति हमेशा काम आता है, और इस मौके पर भी, ऐसे गंभीर मौके पर भी हमें कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसा ही खरगोश चाहिए। अब सब सोचते हैं कि कौन कर सकता है, हमारे बीच कौन है ऐसा जो इतनी कुशलता रखता है, जो इतना अक्लमंद है, जो इस भयानक परिस्थिति में भी हाथियों का सामना करने के लिए तैयार है। तो सब मिलकर कहते हैं कि हमारे बीच तो ऐसा एक ही है, और वो है लंबकर्ण, द ट्रबल शूटर। लंबकर्ण, जिसके कान लंबे हैं और जिसकी बुद्धि बड़ी है, जो अपने वाक कौशलता से सब कुछ संभाल सकता है। लंबकर्ण को बुलाया जाए। लंबकर्ण थोड़ी दूरी पे था, बाहर था, उसको पता चला कि ऐसा ऐसा सब हो गया है। लंबकर्ण को बुलाया गया। लंबकर्ण आया, कहा कि महाराज, मैंने सुना जो यहाँ पे हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा ये सब देख के, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, मारे गए। महाराज भी लंबकर्ण को बोलते, लंबकर्ण, मामला बहुत ही गंभीर है, तुम्हारे अलावा इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तुम्हें हमारा प्रतिनिधि होके हाथियों के पास जाना पड़ेगा, उनके मन में एक भय निर्माण करना होगा जिसके तहत वो वापस दोबारा यहाँ पे ना आए। कैसे करोगे, क्या करोगे, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सिचुएशन क्या है तुम देख रहे हो, जाओ और संभालो इस चीज को, समझो इस चीज को और फिर संभालो इस चीज को, क्योंकि तुम ही हो जो इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम ही हमारे परफेक्ट दूत हो, मैसेंजर हो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि एक मैसेंजर के अंदर ये सारी खूबियां होनी चाहिए जो आप में है। कौन सी खूबियां होनी चाहिए? That messenger is desirable for a king who is good looking, free from covetousness,
skilled in speech, adept in various shastras, and a knower of the intention of others. ये खूबियां एक दूत में होना चाहिए, एक मैसेंजर में होना चाहिए। कौन सी? पहला, दिखने में अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। सुंदर जरूरत नहीं, प्रेजेंटेबल, अच्छे कपड़े पहने हुए, साफ सुथरा लुक, एक तेज चेहरे पर, एक रौनक चेहरे पर, एक हल्का सा स्माइल। हाँ, वेरी नाइस, गुड विजय जी। एस जयशंकर जी इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव। जितनी बार मैं ये सूत्र पढ़ता हूँ उनकी याद आती है मुझे। जी धन्यवाद। सर। जी सर। दैट मैसेंजर इज डिजायरेबल फॉर अ किंग इज गुड लुकिंग। अच्छा दिखता है, स्मार्ट दिखता है ना। फ्री फ्रॉम कवेटियसनेस, खुद की कोई क्या बोलते हैं जिसको, खुद का कोई स्वार्थ ना हो, खुद का कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो, झूठ बोलने का या चोरी करने का कोई कोई इंटेंशन ना हो, साफ सुथरे मन का और देश हित में, समाज हित में काम करने का उसका मन हो। फ्री फ्रॉम एनी सेल्फिशनेस और एनी कवेटियसनेस। स्किल्ड इन स्पीच, जिसकी जिसका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा हो, उसको पता है कौन से शब्द का प्रयोग कैसे करना है, किस समय करना है, कैसे सवालों का जवाब देना है और कैसे सवाल पूछना है। एडेप्ट इन वेरियस शास्त्र, नॉलेज हो उसके पास, दुनिया में क्या चल रहा है, इस बुक में क्या लिखा है, उस ज्ञानी ने क्या कहा है, शास्त्र का ज्ञान हो उसके पास। और सबसे बड़ी खूबी, अ नोअर ऑफ द इंटेंशन ऑफ अदर, जिसको सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये समझने की अकल हो। सामने वाले के मन को जो पढ़ ले, वो व्यक्ति सही दूत है, सही मैसेंजर है। हमारे शास्त्रों में बहुत बार आप देखोगे दूत के ऊपर बड़े बड़े चैप्टर्स लिखे गए हैं, चाहे वो कृष्ण को लेके हो, अंगद को लेकर, हनुमान को लेकर हो। बड़े बड़े शास्त्र लिखे, बड़े बड़े खंड है जो है, पार्ट जो है, वो इनके ऊपर दिया गया है कि कैसा दूत होना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अलग अलग किस्म के दूत बताए गए हैं और चाणक्य ने बहुत ही डिटेल में बताया गया कि दूत कैसा होना चाहिए। ये कहानी थोड़ा बहुत हमको बता रहा है। कहानी के माध्यम से राजा बोल रहे हैं, खरगोशों के राजा लंबकर्ण को कह रहे हैं कि आप ऐसे दूत हो हमारे, जो दिखने में स्मार्ट हो, आप समाज हित में काम करते हो, आपकी वाणी में मधुरता है, आपको पता है कैसी बात करनी है, आपको शास्त्र का ज्ञान है, और आप सामने वाले के मन को भी पढ़ सकते हो, आप परफेक्ट हो। ऐसा जो मैसेंजर होता है वो राजा के लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है, हितकारी होता है। ये परफेक्ट मैसेंजर है। और मैसेंजर कैसा नहीं होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कभी अपना दूत मत बनाओ जो इसके विपरीत हो, इसका ऑपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल, वन हु एम्प्लॉयज अ रॉयल मैसेंजर, अ पर्सन हु इज foolish, covetous, and particularly a liar, is sure to fail in his mission. अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को अपना दूत बना रहे हैं जो बेवकूफ हो या फिर जो बहुत स्वार्थी हो, और तो और वो झूठ बोलता हो, ऐसे व्यक्ति को दूत बनाएंगे तो हम डेफिनेटली फेल होंगे। देखिए, उस वक्त के लिए ये दूत था। पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीति में, या फिर स्टेट क्राफ्ट में ये दूत है। नॉर्मल जो हमारा आज का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसके लिए दूत मतलब कौन है? द सेल्स पर्सन, द सेल्स एग्जीक्यूटिव, एनी पर्सन हु इज फेसिंग द कस्टमर और फेसिंग द सप्लायर, एनी पर्सन हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो दूत है। हम भी हमारे इंस्टीट्यूशन से जब किसी बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए या बड़े मीटिंग के लिए कोई टीचर को अपॉइंट करते हैं तो हम सोच समझ कर करते हैं कि कौन होना चाहिए। हम भी किसी जब प्रोग्राम में या किसी कंपटीशन में हमारे स्टूडेंट्स को भेजते हैं तो हम सोच समझ के भेजते हैं कि वो कौन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव है। उसका परफॉर्मेंस लोगों के सामने हमारे इंस्टीट्यूशन की छवि रखे, तो इसके लिए हमें बहुत केयरफुली सोच समझ कर उसको रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है।
तो लंबकर्ण को कहा जा रहा है कि आप ही सही रिप्रेजेंटेटिव हो, आप जाइए। और हमारे जो खरगोश के राजा हैं वो लंबकर्ण को अपना दूत अपॉइंट करते हैं इस मिशन के लिए, और कहते हैं कि जाओ जाओ और उन हाथियों से बात करो और अपनी कुशलता से उनको अनुभव दिलाओ, उनको ज्ञात करवाओ कि मेरी शक्तियां क्या है। क्योंकि though I have never set an eye on him, judging from the messenger or the missive, I know what kind of king he is, whether he has any wisdom or not. राजा कैसा है, कितना अक्लमंद है, कितना ताकतवर है, इसकी जानकारी दूध से हो जाती है, दूध के व्यवहार से हो जाती है। सुंदरकांड में जिस तरीके से हनुमान राम का इंट्रोडक्शन देते हैं, या फिर जिस पोस्चर में खड़े रहते हैं, जिस ताकत से खड़े रहते हैं, जैसे इमेजिन अगर दूध ऐसा है तो भाई राजा कैसा हो। अंगद जब दूध बन के जाता है तो क्या कहता है कि अंगद जब जब रावण पूछता है कि तुम हो कौन, तो अंगद अपना इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा देता है, मैं बाली पुत्र हूँ, वही बाली जो तुझे अपने बगल में दबा के दुनिया घूम रहा था, जिससे तू थर थर कांप रहा था, उसका पुत्र हूँ मैं, उस बाली का पुत्र हूँ जो जिससे तू भयभीत था। इमेजिन मेरा राजा कैसा हो, है ना। तो अगर तो जनरली बच्चा कैसा है, बच्चा के व्यवहार से, बच्चे कैसा व्यवहार कर रहा है उससे हम माता पिता के अनुमान लगाते हैं ना, घर कैसा हो। फल को टेस्ट करके जो कहते हैं ना कि फल फल का स्वाद चखकर हम अनुमान लगा देते हैं कि पेड़ कैसा है, वैसे ही दूध के व्यवहार से अनुमान लगा लेते हैं कि राजा कैसा है। अगर दूध खराब तो राजा खराब, अनुमान लगाते हैं। हम भी कितनी बार जब किसी शोरूम में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, अगर उस सेल्स एजेंट ने, उस सेल्स पर्सन ने अगर हमसे खराब व्यवहार किया तो हम पूरे ब्रांड को गाली देते हैं, हम कभी उस आदमी को गाली नहीं देते। हम कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ के लोग ऐसे। तो इसके लिए इतना सारा ट्रेनिंग दिया जाता है उनको। जब हम किसी को दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी एक टीचर से इंटरेक्शन करते हैं, किसी एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं और हमारा इंटरेक्शन खराब होता है, सामने वाला गलत व्यवहार करता है, तो हम पूरी पूरी कॉलेज की छवि ऐसे बना लेते हैं कि ये लोग ऐसे ही होंगे और पता नहीं कौन ही इनका लीडर है जो ध्यान नहीं रखता। सो दूत के व्यवहार से राजा की शक्ति, राजा की बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है। तो लंबकर्ण जाओ, आपके तौर तरीके से, आपकी भाषा से हाथी मेरी ताकत का अंदाजा लगाएंगे, मेरी बुद्धि का अंदाजा लगाएंगे, उनको मेरी शक्ति का अनुमान होगा, मेरी तीनों शक्ति का अनुमान होगा, इस राज्य के तीनों शक्ति का अनुमान होगा। क्या है वो तीन शक्ति? The elephants will realize my three powers. So, receiving the full measure of your honor's profound wisdom, the elephants are sure to become aware of my three powers, even from a distance. Sorry, I'm a bit under the weather. So, आपकी भाषा सुनकर, आपकी बुद्धि देखकर हाथी मेरे शक्ति का अनुमान लगाएंगे, मेरे तीनों शक्ति का। कौन सी तीन शक्ति? मैजेस्टी, डिप्लोमेसी एंड एक्शन। मैजेस्टी, राजा कैसा है। दूसरा, डिप्लोमेसी, मंत्री कैसे है। तीसरा, एक्शन, मिलिट्री कैसा है, दंड कैसा है। राजा, लीडर कितना स्ट्रांग है। डिप्लोमेसी, लीडर के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनकी बात लीडर सुनता है, वो कितने बुद्धिमान है, वो कितने अक्लमंद है, ये भी बहुत मैटर करता है। और तीसरा, राजा के हुक्म मानने वाले जो सिपाही हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो कितने ताकतवर हैं, वो कितने पोटेंशियल रखते हैं और वो कितने वफादार हैं। इन तीनों शक्ति का अनुमान हो जाएगा। याद रखना,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फल फूलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन तीनों का ताकतवर होना जरूरी है। राजा अगर सही नहीं है तो फिर डिप्लोमेसी एक्शन किसी बात का नहीं। राजा अच्छा है, बट उसके इर्द गिर्द के जो मंत्री हैं वो सब चापलूस हैं, वो सब झूठ बोलने वाले हैं, काम के नहीं है, तो राजा भी कुछ नहीं कर पाएगा। राजा और मंत्री अच्छे हैं, बट नीचे जो सैनिक हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, वो आलसी हैं, वो काम चोरी करते हैं, तब भी प्रॉब्लम होगा। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वो है जहां तीनों अपना काम बखूबी जानते हैं और तीनों कमिटेड है अपने काम की तरफ, राइट। तीनों का होना जरूरी है, तीनों का सक्षम होना जरूरी है। तो जाओ लंबकर्ण, अपनी कुशलता से, अपनी सोच सूझबूझ से हाथियों को मेरे बल का अनुमान दो। अब हमारा लंबकर्ण जाता है। लंबकर्ण पहला जो दिन है ना, वो देखता है कि ये लोग हाथी आए कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा खबर लेता है। फिर उसको अनुमान हो जाता है कि 2 दिन बाद हाथी दोबारा लौटने वाले हैं, उसी चंद्र सागर में आने वाले हैं। तो हाथी जैसे पहले दिन निकले थे 6:30 बजे, आज भी 6:30 बजे हाथी अपने घर से निकलते हैं झुंड में। उनके आगे आगे चतुर्दंत चल रहा है और ये लोग चल रहे हैं चंद्र सागर की तरफ। आधे रास्ते हुए हैं, तभी लंबकर्ण उनको देखता है कि अरे वाह, ये लोग तो आ रहे हैं, चतुर्दंत आगे आगे आ रहा है, ये सही समय है जब मुझे उससे बात करना चाहिए। तो उसी रास्ते में बगल पे एक छोटा सा ऐसा एक टेकड़ी जैसा, एक पहाड़ जैसा, एक छोटा सा ऊंचा ऊंचा वाला स्थल एक था। उसके ऊपर जाके लंबकर्ण खड़ा हो जाता है और आते हुए हाथियों के झुंड को देखता है। और जैसे ही चतुर्दंत थोड़ा पास आता है, ऊपर है, पहाड़ के ऊपर लंबकर्ण है और नीचे रास्ते में चतुर्दंत आगे आगे, बाकी हाथी पीछे पीछे। लंबकर्ण उसको दूर से पुकारता है और उसको ऐसे ग्रीटिंग करता है। कहता है कि चतुर्दंत नमस्कार, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। दूर से ही करता है, पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है हाथी के स्पर्श मात्र से जान जा सकती है। तो हाथी से दूरी मेंटेन करना जरूरी है, उतनी ही दूरी रखो जहां पे भाषा पहुंच सके, हाथ नहीं। तो उतनी दूरी मेंटेन करता है और वहां पे कहता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कौन हूँ। तो कहता है चतुर्दंत नमस्कार। चतुर्दंत कहता है नमस्कार, कौन हो तुम? तो लंबकर्ण अपना परिचय कुछ इस प्रकार देता है। लंबकर्ण कहता है, मैं चंद्रलोक से आया हूं, चंद्रदेव का दूत बनकर। कहां से आया हूं? चंद्रलोक से, चंद्रदेव का दूत बनकर। देखिए, चंद्रमा जो होता है उसके ऊपर एक छवि दिखती है, दिस ब्लैक स्पॉट, है ना। और लोग कहते हैं कि वो छवि जो है वो खरगोश जैसा दिखता है। कभी पूर्णिमा की रात को देखिएगा, उसका जो आकार है वो थोड़ा खरगोश जैसा है। तो उसी का फायदा उठाते हुए वो कहता है कि मैं आया हूँ चंद्रलोक से, जहाँ बहुत खरगोश बसते हैं। हमारे राजा चंद्रदेव, उन्होंने मुझे भेजा है अपना दूध बनाकर। तो उनका, अच्छा, चंद्रदेव ने भेजा है? बड़ी खुशी हुई जानकर कि चंद्रदेव ने तुम्हें भेजा है मेरे पास। तो बोलता है, मगर चंद्रदेव तुमसे खुश नहीं है। तो हाथी कहता है, क्यों? चतुर्दंत कहता है, क्यों? वो क्यों मुझसे नाराज है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बात क्या है, बताओ मुझे। तो लंबकर्ण कहता है, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मगर उससे पहले कुछ याद दिला दूं कि दूत और दूत के व्यवहार को लेकर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम है, उस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और वो नियम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। A messenger should in no case be killed even on raising a weapon, even on killing the kith and kin of a king, or even on uttering harsh words. दूत को अभयदान मिला है। दूत कुछ भी कहे, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए।
क्योंकि वो राजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधि है। दूत के हाथों अगर कुछ किसी की मृत्यु भी हो जाए तब भी उसको अभयदान मिलना चाहिए। आज भी है ये नियम आज भी है। जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो एनवॉयज होते हैं, वो अगर कुछ, लेट्स से पाकिस्तान का एम्बेसडर इंडिया में है और उसके हाथों कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मारा जाता है, इंडिया का कानून उन पे नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, उसको घर वापस भेज सकते हैं, उसको कह सकते हैं तुम पाकिस्तान वापस जाओ। तो इसके लिए दूध के ऊपर कभी अटैक नहीं होता। मैं जनरली कंसर्न लोकल, बिकॉज इट इज अ प्रोटोकॉल दैट एवरीबॉडी, जिनीवा प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, इट इज स्टिल बीइंग फॉलो। सो दूध के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। दूत अपना काम कर रहा है, उसके हाथों अगर गलती भी हो जाए तो शास्त्र कहते हैं उस गलती को भी माफ कर देना चाहिए। उसको पहले अपने एरिया से, अपने राज्य से बाहर निकालना चाहिए, और उसके बाहर जाके जो करना है करना चाहिए। बट जब तक वो दूध का कार्य कर रहा है तब तक उसके ऊपर हानि नहीं होनी चाहिए। तो चतुर्दंत, मुझे आपको ये याद दिलाना है महाराज कि मैं दूध का काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चंद्रदेव का मैसेज लेके आया हूँ। तो चतुर्दंत कहता है, बिल्कुल मुझे पता है कि दूध को लेकर नियम कानून क्या है, और मैं उसका बिल्कुल पालन करूंगा। तुम निसंकोच, बिना डरे जो मैसेज है वो कहो। सो ये डिलीवर करता है, कहता है महाराज, हमारे जो राजा हैं चंद्रदेव, वो आपसे बिल्कुल खुश नहीं है, और उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। चंद्रदेव आपसे कहना चाहते हैं, whoever embarks on a venture in a moment of rash folly with no thought of strength and weakness, his own and those of his enemy, is simply asking for trouble. हर वो व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कोई कदम उठाता है, बिना जाने कि उसकी शक्ति क्या है, उसके खुद के वीकनेस क्या है, या फिर सामने वाले की शक्ति क्या है, या फिर सामने वाले का वीकनेस क्या है, ये बिना सोचे समझे अगर कोई व्यक्ति कदम उठाता है तो वो अपना कब्र खुद खोद रहा है, मुसीबत खुद बुला रहा है। तो चतुर्दंत कहता है, मैंने ऐसे क्या किया, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि चंद्रदेव मुझे ऐसे कह रहे हैं। फिल्मकर्ण कहता है, महाराज कुछ दिनों पहले आप चंद्रदेव के सागर में गए थे, चंद्र सागर में गए थे, और वहां आपने बहुत सारे खरगोश जो चंद्रदेव की प्रजा है उनको कुचल दिया, बिना सोचे समझे कि चंद्रदेव आप पे अगर गुस्सा हो जाए तो कितना भारी परिणाम आपको चुकाना पड़ सकता है। अगर आपको नहीं ज्ञात हो रहा तो मैं आपको बता दूं कि अगर चंद्रदेव आपसे नाराज हो जाएं तो आपको कितनी हानि हो सकती है। चंद्रदेव अपनी शीतलता आपको देना बंद कर देंगे, अपनी ठंडकता आपको देनी बंद कर देंगे। जस्ट टू कीप इन माइंड, हाथी जो है, हाथी हाथी बायोलॉजिकली उनका जो चमड़ा होता है, जो स्किन होता है, उनको पैकीडर्म कहते हैं। हाथी के चमड़े में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, उनको पसीना नहीं आता, और क्योंकि उनको पसीना नहीं आता इसलिए गर्मियों में हाथी का चमड़ा फटता है, और चमड़ा जब फटता है तो उसके अंदर कीटाणु घुसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन घुसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके लिए हाथी अपने को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में लोटपोट करता है, पानी के अंदर रहता है गर्मी में, और रात का इंतजार करता है जब उसको थोड़ा शांति मिले, ठंडकता मिले। और हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव जो है वो गर्मी का प्रतीक है, उनकी उनकी जो किरणें हैं वो गर्म है, और चंद्रदेव की जो किरणें हैं वो शीतल है। तो वो शीतलता बहुत सारे जानवरों को चाहिए होती है, और खासकर जिनकी चमड़ी जो है वो थिक होती है, जिनके अंदर पसीना नहीं आता, इनको ना फर है ना ये है, स्वेट ग्लैंड्स। सो चतुर्दंत, चंद्रदेव ने कहा कि अगर आपने ये दोबारा ऐसी हरकत की तो उनसे मिलने वाली जो शीतल किरणें हैं, जिसके सहारे आप आराम से रात को सो पाते हो, वो बंद हो जाएंगे, और इसका असर आप पे और आपके झुंड पे, आपके पूरे हाथियों के समाज पर बड़ा गहरा पड़ेगा। चतुर्दंत डर जाता है और कहता है, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि
मैं मेरे पैरों के नीचे या फिर मेरे झुंड के पैरों के नीचे खरगोश कुचले जा रहे थे। मुझे ऐसा करने की कोई उम्मीद नहीं, मतलब कोई आशा नहीं थी या फिर कोई मेरा लक्ष्य नहीं था ऐसा। गलती से हो गया। मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मैं स्वयं चंद्रदेव से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अपनी भूल का, अपने झुंड की तरफ से उनके भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, माफ़ी माँगना चाहता हूँ, क्षमा माँगना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे चंद्रदेव की तरफ ले चलिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और माफ़ी माँगना चाहता हूँ। अब खरगोश ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो 1 मिनट के लिए सोचता है और फिर एक तरकीब निकालता है। उसे याद आता है कि आज पूर्णिमा की रात है और अभी चाँद ऊपर आने ही वाला है और उसकी परछाई ज़रूर पड़ेगी चंद्र सागर में। वो कहता है, ठीक है, तुम चंद्रदेव से माफ़ी माँग सकते हो, मगर तुम अकेले आना, अपने झुंड को मत लेके आना। हमारे राजा सिर्फ एक राजा से मिलेंगे, तुम अकेले आओ। चतुर्दंत कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। तो चतुर्दंत को लंबकर्ण लेके जाता है। जैसे ही वो चंद्र सागर के पास होते हैं, करीब होते हैं, चंद्रमा ऊपर है, चंद्रमा की परछाई पानी पे गिर रही है, एकदम शांत पानी है। पानी की गहराई में से चंद्रमा की प्रतिमा जो है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो दिख रहा है। और दूर से ही लंबकर्ण कहता है, अरे ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ। हमारे चंद्रदेव जो है वो गहरे ध्यान में है, समाधि में है। उनको इस वक्त डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। वो ऑलरेडी आपसे नाराज है। अगर अभी डिस्टर्ब किया तो पता नहीं गुस्से में आके क्या श्राप दे दे, क्या कर दे आपके साथ। आप दूर से ही माफी मांग लो, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। तो चतुर्दंत वहीं पे ऐसे नतमस्तक होके चंद्रदेव को सॉरी कहता है और वहां से चला जाता है। जब वो चला गया तो लंबकर्ण जाता है और बाकी खरगोशों से कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, हाथियों का आतंक दोबारा यहाँ पर नहीं होगा। चतुर्दंत और उसकी टोली यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आएगी। सब ऐसे लंबकर्ण की जय जयकार करते हैं और कहते हैं लंबकर्ण की जय हो। राजा भी खुश हो जाते हैं और खरगोश हमारे अच्छे से उसी जगह पे फिर से रहने लगते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी है। कैसी लगी कहानी? बहुत बढ़िया सर। वेरी नाइस सर। वेरी जबरदस्त नाइस कहानी सर। अच्छी लगी। एक्सप्रेसिंग आज के सर ये क्वेश्चन था, आज के भारत में लंबा करना हाथी और खरगोश कौन है? ये आपको विचार करना है। आप लिखिएगा, जब हम कभी मिलेंगे सामने सामने तो इस पे चर्चा करेंगे। अभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट यस, एवरीबॉडीज गेस, यू कैन कीप ऑन राइटिंग इट कि कौन लंबकर्ण है, कौन चतुर्दंत है, कौन सूर्यदेव है, कौन चंद्रदेव। देखिए, अगर ये कहानी ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सुनी है, ये कहानी हमने पहले भी सुनी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में, किसी कॉमिक्स में हमने सुनी। बट ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है आजकल, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और ये जो हमारा जिस तरीके का हमारा इंटरेक्शन है और जिस तरीके से ये कहानी अब हमारे सामने है, हम जानते हैं कि ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये कोई मनोरंजन के लिए बताई हुई कहानी नहीं है। इस कहानी में कोई कुछ सीख है, कुछ तो हमने देख ली, कुछ सूत्र हमने देख ली जो तो एकदम पावरफुल, सीधे सीधे हमको बता रहे हैं कि क्या सीख है। बट ये कहानी में और भी बहुत सारे गुण हैं। क्या है? कुछ कुछ पॉइंटर्स अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर अगर किसी को कहना है तो कह सकते हो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या हमें सीखने बोल मिले? सकते हैं? रिफ्लेक्शन। जी बोलिए मैडम, बोलिए गीता जी। हाँ, हाँ। त्याग जीवन का एक तत्व है हम्म। और शक्ति विरुद्ध युक्ति। ओ, त्याग जीवन का एक तत्व है और हाँ, शक्ति से मार विरुद्ध युक्ति। युक्ति। जो यह उन्होंने यूज किया, खरगोश ने यूज किया, युक्ति का यूज किया। वेरी गुड। सो द रियल पावर लाइज ओवर हियर। युक्ति, बुद्धि शक्ति जो है वो बल शक्ति से, बाहु शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है और हमेशा कारगर साबित होती है। नाइस गीता जी। और कुछ? थैंक यू सर। सर इसके अलावा विशेष रूप से राजा की जो विशेषताएं है, नेतृत्व कैसा हो, संगठन किस दिशा में हो, ये शिक्षा भी आपने प्रदान की।
बहुत चरित्र बढ़िया। पात्रों के निरूपण के द्वारा। वेरी नाइस। यस, ये कहानी में ये सब मौजूद है कि एक राजा की ये विशेषताएं क्या होनी चाहिए, एक दूत की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके का वाक संवाद होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकें। और किस तरीके का एक संगठन होना चाहिए, बहुत बहुत अच्छे से वेद प्रकाश जी ने कहा, किस तरीके से संगठन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मंत्रीगण कैसे होना चाहिए, सिपाही कैसे होने चाहिए, ताकि हम एक एक संगठन जो है वो समृद्ध रहे, वो सुरक्षित रहे। बहुत अच्छी तरह पेश किया गया है। जी बेटा जी। आप प्रभा राजे जी, प्रभा राजे शर्मा जी। यस सर, यस सर। मुझे ये लगता है कि हमको बहुत जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ये शिक्षा मिलती है कि हम्म, हमको प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जल्दी हार जैसे नहीं माननी खरगोशों ने चाहिए। प्रयास किया, हाँ, और हाँ उनको सफलता हासिल हुई। जी, उन्होंने प्रयास किया। और कुछ खरगोश थे जो चाहते थे कि छोड़ के जाए, बट वो छोड़ के, बाकी लोग नहीं मान रहे थे। कुछ लोग थे जी। नहीं जो कह रहे थे नहीं हमको फाइट करना है, तो उनको वो मौका मिला और उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और सफल जी। भी हुए। पूजा जी, गिरीश जी, आपने हाँ सर, जी स्टोरी इज वेरी नाइस, लेकिन अगर इसका एक सेकंड एस्पेक्ट देखें कि वो सेल्फिश हो गए, जिनके पास वाटर नहीं था उनके लिए मिडवे क्यों नहीं निकाला। वेरी हम नाइस, दूसरों के वंडरफुल। बारे में भी तो सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश हो गए हम यहाँ पर। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। मैं उसको थोड़ी देर में आंसर करता हूँ पूजा जी। ओके, सर थोड़ी देर में, मुझे बस। भी एक पॉइंट पता चला कि जी। जो जनमानस में फैली हुई धारणाएं रहती है, जैसे हम्म चांद और उसके ऊपर खरगोश की छवि, उसका हम्म उन धारणाओं का एक दूत बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हम्म। करके जीत हासिल कर सकता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। कि जनमानस के अंदर जो प्रचलित भावनाएं हैं, जो प्रचलित कहानियां हैं, जो नैरेटिव है, उस जी सर, नैरेटिव को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अकलमंद व्यक्ति, एक अकलमंद इंसान उसका अच्छी तरह एक उपयोग करता है। हम भी अपने बच्चों को डराने के लिए कभी कभी करते हैं ना, ये करो जी वरना ऐसा सर, आ जाएगा, बहुत। वो आ जाएगा। जी जी सर, बहुत वो बार भले करते हो हैं। नहीं, हम करते हैं तो हम करते हैं, उस कहानी का, उस नैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं उनकी भलाई के लिए या फिर अपने सुविधा के लिए, जैसा भी है जरूर करते हैं। जी सर, जी धन्यवाद मैम, नलिनी मैम। गिरीश जी। थैंक यू सर। अच्छा, तो अब मैं पूजा मैडम के का जो सवाल था उसको आंसर करता हूँ, ठीक है। कि उनको बुरा लगा, बेचारे हाथी, वो चले गए, उनको पानी नहीं मिला। अब हाथी सबके प्रिय जानवर होते हैं, मुझे भी बड़े पसंद है, दिखने में बड़े क्यूट से होते हैं ना। कभी कभी हमको बुरा लगता है। देखिए, ये कहानी है पंचतंत्र की। पंचतंत्र जो किताब है, वो किताब है नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र जो विषय है, वो विषय है व्यवहार का। वो व्यवहार जो हमें समाज में रखना है, अलग अलग व्यक्ति को। एक राजा के नाते हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, प्रजा के नाते क्या व्यवहार होना चाहिए, स्टूडेंट के नाते क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारे धर्म को समझने का और धर्म के अनुसार कर्म करने का, और नीति का, सही नीति का उपयोग करके कर्म करने का। ये कहानी एक केस स्टडी है। ये देखना कि दो गुटों के बीच में झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट कब होता है। कोई भी दो गुट, दो परिवार हो, दो व्यक्ति हो, दो समुदाय हो, या फिर दो देश हो, उनके बीच में झड़प, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तभी होती है जब बीच में कोई रिसोर्स रहता है, कोई लैंड रहता है, कोई जमीन का टुकड़ा होता है, कोई पानी पानी का प्रवाह प्रवाह होता है, या फिर पानी का कोई जल जल का कोई स्रोत होता है। उसी को लेके झगड़ा है, और ये बायोलॉजिकल है, नेचुरल है। ये छोटे से माइक्रोब से लेके बड़े से एलिफेंट तक, या फिर उससे बड़े चीजों तक पाया जाता है।
इसके बीच में खरगोशों को सबसे पहले अपनी सुरक्षा और अपने समाज की सुरक्षा का सोचना सबसे पहले मैटर करता है। हम भी जब माता पिता बन जाते हैं तो हम भी अपने परिवार के बारे में पहले सोचते हैं। वही नीति है हमारा। हम भी अपने राष्ट्रपति से, हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी सुरक्षा के बारे में पहले सोचे, ना कि दान देते रहें और दुनिया के सामने महान बने, है ना। वैसे ही खरगोश को भी हक है वो अपने परिवार, अपने समाज के बारे में पहला सोचे। अब कहानी यहाँ रुक गई। हाथियों के साथ क्या हुआ हमको नहीं पता। कभी भी कोई कहानी कंप्लीट नहीं होती। आप अगर उसको कंप्लीट करना चाहो तो फिर ऐसे कुछ कर सकते हो अच्छी तरीके से कि हाँ ठीक है, हाथी गए, उन्होंने दूसरा तालाब ढूंढ लिया, या फिर 2 महीने बाद बारिश हो गई और सब मामला ठीक हो गया। ये एक हैप्पी एंडिंग था। बट पंचतंत्र की किताब में हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगा। कोई ना कोई तो दूसरी तरफ रहेगा, थोड़ी निराशा दूसरे वालों को, क्योंकि यही लाइफ है, यही रियल लाइफ है। अब इन सब चक्करों में आप अपना धर्म का पालन कीजिए। खरगोश के राजा ने अपने धर्म का पालन किया, लंबकर्ण ने अपने दूत होने का धर्म का पालन किया। झूठ के सहारे से, पूरी तरह तो झूठ नहीं था वो जो भी कहा उसने, बट मैनिपुलेट, थोड़ा एक दूत होने का उसने अपना जो धर्म है उसका निर्वाह किया। उसने अपना काम किया, उसकी क्या गलती। अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं किया, अपने समाज के लिए वो बनता है। हम भी अपने परिवार के लिए करते हैं। हम भी कभी जो हमारे कोई जान पहचान वाले हैं कुछ आके हमसे मांगते हैं, पैसे आते हैं, पैसे हैं, कुछ पैसे मांगते हैं, कोई वस्तु मांगते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर मेरी परिवार की ज़रूरत है, मेरी बेटी की ज़रूरत है, मेरी बेटी की ज़रूरत है, मेरे किसी की ज़रूरत है, तो हम मना कर देते हैं। होते हुए भी हम मना कर देते हैं। ऐसे बुरा नहीं है। हाँ, जो उदार है, जो बहुत ही दानी है, वो लोग बहुत रेयर हैं और ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं। बट अपने परिवार के हित में सोचना, अपने देश के हित में सोचना बुरा नहीं है। वो भी तो नीति है। जैसे कि हमने कहा, अगर हमारे देश में खाने की किल्लत है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, पूजा जी का जो सवाल था, इन जनरल में आपसे कहूँ कि दुनिया भर के जो रेफ्यूजी लोग हैं, जिनके घर में बहुत मातम मना हुआ है, जिनके देश में बहुत हमले हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, क्या उनको हम अपने शरण में ले लें, इंडिया में ले आए? हमारे रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे ना सर। एग्जैक्टली ना, वही फिर हमारे समाज का क्या होगा? परफेक्ट, वही बात। तो इसके लिए हमें अपने बारे में हित में सोचने का अधिकार है। हम जब समृद्ध हो, हम जब हमारे पास जो एक्सेस हो वो उसका ध्यान करना चाहें तो हम दे दें। एक आम का पेड़ है ना, वो आम का पेड़ जब तक वो कैरी कच्ची होती है तब तक उसको नीचे नहीं गिराता। एक बार पूरा पकने के बाद ही उसको नीचे गिराता है, क्योंकि वो जानता है कच्ची कैरी अगर नीचे गिर जाए तो उस पेड़ का कुछ लाभ नहीं होगा। पका हुआ आम अगर नीचे गिरे तो उसमें से एक पौधा आ सकता है। तो पेड़ भी बड़े सोच समझकर वो चीज करता है, अपने प्रजाति के हित के लिए। और यही नेचर का लॉ है, नेचर की साइंस। Pooja ji, I hope I was able to answer that. At least give some satisfactory response, if not it was an answer. Yes sir, but we cannot give this type of answer to our kids ना। बच्चों को अगर हम ऐसा सिखाएंगे सर, हमारे छोटे बच्चे हैं जिनके, जी तो जी, वो मे बी कि वो उसको उस अगर एस्पेक्ट से ना Correct. लेके करेक्ट, हम Agree. अपन मैच्योर। यस, अग्री, टोटली अग्री। तो बट अभी ऐसा है ना कि जब बच्चे होते हैं तो उनके अंदर हम धर्म की जो व्याख्या है, धर्म का जो सीख है वो डालते हैं।
शेयर करना, देना, एकदम स्ट्रांगली ये डालते हैं। जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा होता है, हाँ हमारे साथ भी यही हुआ था ना, जैसे जैसे हम बड़े हुए हम नीति सीखते हैं। हम बच्चे को बोलते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। बड़े होने के बाद जब वो सच बोल बोल के एक दो बार फंस जाता है, तब हम उसको बोलते हैं भाई इतना भी सच मत बोलो, सबके सामने इतना भी सच मत बोलो, हम भी तो सीखते हैं। तो बचपन में उस फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना बनता है, दया की भावना, शेयरिंग का जो एक ये है, वो सब सिखाना बनता है। बट बड़े होने के बाद उसको सिखाया जाता है। जैसे इमेजिन, इतना अच्छा अगर प्यारा सा बच्चा अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए या फिर हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाए, हम सुरक्षित फील नहीं करेंगे इसके लिए। कितना अच्छा ही व्यक्ति क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग हो, नीति पूर्वक व्यवहार रखे, ना कि दयालु बन के सबको बांटता रहे। ऐसे घर भी होते हैं जिनके जो मुखिया हैं वो बाहर दुनिया में सब बांटते हैं और उनके घर वाले ही नाखुश रहते हैं कि यार हमको कुछ नहीं मिल रहा है और दुनिया में बस उनको दान करना है। ऐसा ना हो। आपका सर पॉइंट बनता बच्चों है। को ये भी सिखाना चाहिए हम्म। कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। ये सीख या भी उनको देना करेक्ट, जरूरी होता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द वेज। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि मैं शाकाहारी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि शेर भी शाकाहारी है। मैं शाकाहारी हूँ, ये मेरे बस में है, बट ये उम्मीद लगाना कि शेर भी शाकाहारी बन जाए, ये नहीं हो सकता। और बाहर जंगल में बहुत शेर है, उनसे आपको डील करना है तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं नीति और उसको। आदर्शवाद में फर्क है ना सर। जी, राजनीति और आदर्शवाद जो चीजें हैं, करेक्ट। दोनों में सुनो, काफी फर्क है। करेक्ट, करेक्ट। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला मैडम। जो बच्चे होते हैं ना बचपन में, उनको आदर्श जो होता है ना, जो आदर्शवाद होता है, उसकी सीख देनी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, धर्म पूर्वक होना चाहिए। बट जैसे ही बच्चे बड़े हों, वरना भोले वाले बच्चे बहुत ही जल्दी फंस जाएंगे। उसका नीति का प्रयोग आना चाहिए, सिखाना जरूरी है, और वही नियम है, वही कानून है, वही सही तरीका भी है। नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग, नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग। और अगर कहानी के माध्यम से देखें, कौन शेयर कर रहा था? कहानी के माध्यम से। पूजा जी, आपको आपका जवाब जो है मैं पूरी तरह कहानी के माध्यम से देता हूँ, ठीक है? जी। अगर खरगोश उनको बोल देते हैं हाथी को, क्या खरगोश इतने ताकतवर थे कि वो हाथियों को ये अनुमति दे पाए कि जाओ पानी पियो? हाथी बोलते तुम होते कौन हो हमें अनुमति देने वाले? पहला, अगर अनुमति मिल भी जाने से खरगोश कुछ करते भी नहीं। क्या हाथी ये मान जाते हैं, ये 100% मान जाते कि ठीक है हम पानी पीने नहीं आएंगे? ये हो सकता था? नहीं हो सकता, क्योंकि वो आसपास पानी था ही नहीं, उसी एक जगह पे था। शायद आप अगर कहानी को बदलना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं कि हाथी और खरगोश के बीच में संवाद हुआ। हाथियों ने कहा कि देखो हमको तो पानी चाहिए, खरगोश ने कहा कि हम कहाँ जाएं? तो हाथी कहेंगे ठीक है तुम उस कोने में रहो, हम इस कोने से पानी पियेंगे, हम सिर्फ इसी साइड से आएंगे। तो ये भी हो सकता है। अब कहानी को हम कितना भी खींच सकते हैं। अब इन हाथियों को आते हुए देख बाकी जो दूसरे जंगल के हाथी हैं वो भी आने लगे और धीरे धीरे बैठे, और ऐसे ही तो होता है। लुक एट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या हुआ है, क्या हो रहा है? पैलेस्टाइन में जो चल रहा है, इजिप्ट और जॉर्डन को कहा गया है कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी को आप अपने अंडर ले लो, अमेरिका ने कहा है। इजिप्ट और जॉर्डन को, दोनों ही देश पैलेस्टाइन के सपोर्टर हैं। उनको कहा गया कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी को आप अपने ले लो। दोनों ही देश अभी कह रहे हैं हम क्यों ले भाई, हम अपने प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, ऑलरेडी शरणार्थी भरे हुए हैं, और शरणार्थी हम क्यों लें? सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही है। है ना? तो ये जो कहानी है ये बहुत हद तक
आज होने वाले इन प्रेजेंट मत सिनेरियो को डील दर्शाती कर। है। Yes. और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बट वही है कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. नेचर इज नॉट अबाउट बीइंग आइडियलिस्टिक. नेचर इज ऑल अबाउट बीइंग रियलिस्टिक. जंगल का कानून होता है सर, जो कमजोर जी, होता है उसे कुचला जाता है। एब्सोल्युटली. वहां पे आदर्शवाद नहीं चलता नहीं है। चल नहीं चलता, नहीं चलता. तो कुछ कुछ ये है, मैसेजेस हैं चैट बॉक्स में, मैं एक बार पढ़ लूँ. योर थैंक यू सर. अपनी अपनी एंजॉय से किसी को गलती से भी हानि ना पहुंचे. दैट्स करेक्ट. नॉट फॉर एंजॉयमेंट. एब्सोल्युटली. One example of diplomacy in Mahabharata is Yudhishthir was persuaded to tell Dronacharya, the man, yeah, correct, right, very nice. So he manipulated it. He said it. इसका इस कर्म का फल उनको भुगतना पड़ा, but then that was required over there. This story reminds me of a film, Drishyam. Very nice, very nice. It's all about narrative. Yes, Rajesh. But today's harsh reality is people don't believe in Niti and don't want to teach their kids. Correct. Very nice. I agree. So क्योंकि हम खुद कंफ्यूजन में हैं कि आदर्शवाद की तरफ रहना चाहिए कि रियलिस्टिक होना चाहिए. हम खुद कंफ्यूजन में हैं. और नीति खराब नहीं होती. नीति इज नॉट ऑलवेज कूटनीति. नीति इज नॉट ऑलवेज मैनिपुलेटिव. नीति इज अंडरस्टैंड क्रिएटिंग अ बैलेंस, मेंटेनिंग अ बैलेंस. मैं हमेशा चालाकी करूंगा, लोगों अपने ही स्वार्थ के लिए सब हड़प, ऐसा भी नहीं. इट इज नोइंग. सी कैसा है ना, नीति को समझना आसान है, उसको प्रैक्टिस में लाना बुद्धिमत्ता के काम है. इतना आसान सबके बस की बात है. वो बैलेंस एक बहुत 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 ही बड़े संतुलन का काम है. वो हमेशा नहीं. और एक माँ एक बाप समझता है इस चीज़ को. हमेशा डांट के काम नहीं होता. कब प्यार करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब डांटना चाहिए, कितना डांटना चाहिए, कब उसको उसकी डिमांड को पूरी करनी चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये हमारी समझ है. हम उस बैलेंस को मेंटेन करके चलते हैं. अगर उसके बच्चे की डिमांड को हम बिल्कुल पूरा नहीं करेंगे, बिल्कुल ही पूरा नहीं करेंगे, तो वो अटैचमेंट चला जाएगा, बागी हो जाएगा. और अगर हर जरूरत को पूरा करे तभी सही नहीं है. तो वो बैलेंस पॉइंट जो है वो कहाँ है, कैसा है, संतुलन कैसे मेंटेन करना है, ये नीति. ये बच्चा सीखता भी है, पेरेंट्स को देख के भी सीखता है. मुझे भी याद है वो पहली बार जब मुझे बोला जाता था बचपन में, सच बोलो. और बहुत मार पड़ती थी, झूठ क्यों बोला, सच बोल. बहुत मार खाई. फिर एक दिन ऐसे बाजू वाले हमारे जो नेबर हैं वो कुछ आके ऐसे मांगने आए थे कुछ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, शायद दूध था या शक्कर था या चीनी था, क्या था, कुछ मांगने आए थे. और हमारे घर पे था, मुझे पता था. और माँ ने मना किया कि नहीं है, खत्म हो गया. मैं भी पूछा कि आपने क्यों झूठ बोला, अभी आपने क्यों झूठ बोला. बोलना पड़ता है, हमारे पास इतना ही है ना. खत्म हो गया तो फिर मैं तुम्हें क्या दूंगी, क्या करूंगी. That realization we have to, that requires some maturity after a certain age to understand. ऐसा नहीं कि असत्य कहना चाहिए, ऐसा भी नहीं. नीति का आधार ही धर्म और सत्य है, बट बड़ा सत्य, बड़ा धर्म. So yeah, honesty is the best policy, but today reality is different. What is your expert opinion? I'm not an expert, sir. I'm just a common man reading few words. So, but I will do share my humble experience or humble opinion on this. So honesty is the best policy. Yeah, but what does honesty mean? देखिए, honesty and truth के बीच में फर्क है. Honesty could be also with respect to your role. मैं स्टेज पर खड़ा होकर रामलीला में हनुमान की एक्टिंग कर रहा हूँ. क्या मैं हनुमान हूँ? नहीं. मैं तो हनुमान की एक्टिंग कर रहा हूँ. तो क्या मैं झूठा हूँ एक्टिंग कर? नहीं. आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू माई कैरेक्टर. अब हनुमान के भेष में खड़ा होकर मैं भरत नहीं बन सकता. मतलब मैं अपना कुछ डायलॉग नहीं बोल सकता, मैं अपनी तरफ से. मुझे वही करना होगा जो हनुमान ने कहा. सो क्या वो सत्य है? क्या मैं हनुमान हूँ? नहीं.
वो असत्य है। मैं कौन हूँ? मैं जो हनुमान का किरदार निभा रहा है। सो आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट टू माय कैरेक्टर बाय प्लेइंग द कैरेक्टर। इट इज नॉट जिसे द ट्रूथ। परकाया प्रवेश भी कहते हैं ना सर। सॉरी सर। परकाया प्रवेश, जब आप हाँ, किसी किरदार को निभाते हैं उस करेक्ट, पर। एब्सोल्यूट। उस पर जब आप पूरी तरह उस किरदार को निभाते हो, यू बीइंग ऑनेस्ट टू दैट रोल, नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैसेंजर का रोल इसने निभाया, पूरी तरह निभाया, nothing wrong in that. He is being honest to that character. Remember, there is a difference between honesty and truth. And this question was asked one of my student, okay, 2 साल पहले क्लास में पूछा गया, कैसे ऐसे ही कुछ डिस्कशन चल रहा है, नीति शास्त्र को लेके ही चल रहा था। उन्होंने भी कहा कि सर, बट झूठ बोलना, ऑनेस्टी कैसे चलेगा? मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। अब ये इमेजिन कीजिए, बस आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि हनुमान का एग्जांपल अभी हमने लिया किरदार का, ऐसे देखिए। सपोज मैं यहाँ पे आपको खड़ा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा दूर लेके जा रहा हूँ तो आप देख पाओ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ओके। मेरा ये टी शर्ट जो है वो यहाँ से सामने से सफेद है और पीछे से काला है। सामने से सफेद, पीछे से काला है। आप मुझे ऐसे देख रहे हैं। आपको इस सेशन के बाद अगर किसी ने पूछा कि सर ने क्या पहना था, तो आप क्या बोलोगे? सफेद रंग का टी शर्ट पहना था। क्या आप सत्य बता रहे हो, या ये क्या ये ट्रूथ है या ये ऑनेस्टी है? आप सत्य नहीं बता रहे हो, क्योंकि सत्य जानने के लिए आपको पीछे से देखना पड़ेगा कि पूरा सफेद था क्या नहीं। आप बस अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हो कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट, कि जो मुझे दिखा वो सही है, मैंने जो देखा मैं आपको बता रहा हूँ। यू आर बीइंग ऑनेस्ट। But the complete truth is, this is not just a white t-shirt. This is a white and black or black and white t-shirt. But हमारे पर्सपेक्टिव से जो हमको दिखता है, जो सही दिखता है, हम उसके प्रति ऑनेस्ट रहें तो सही। हमारा रोल जो है उसको निभाए तो सही। That is also being honest. Nothing wrong in that. Nothing wrong. एज अ डिप्लोमेट अगर मैं जाऊं और एज अ लीडर अगर मैं जाऊं और सामने वाले को कहूं कि सॉरी, हम आपको ये चीज़ नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे हैं बट हम आपको दान नहीं दे सकते, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, नहीं दे सकते। हाँ, एक चीज़ भूलना नहीं, ओके? ऑनेस्टी रखने की क्षमता जितनी होनी चाहिए, ऑनेस्टी एक्सेप्ट करने की भी क्षमता उतनी होनी चाहिए। हर व्यक्ति उस ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहता। सबके सामने हम ऑनेस्ट व्यवहार नहीं दिखा सकते, क्योंकि सामने वाला ही तैयार नहीं है उस चीज को। तो वो नीति है, उसको समझना नीति है, सर मुझे वरना लगता है गलती कि हो सकती। हाँ सर, हम लोग अपने विकारों में इतने जकड़े हुए होते हैं कि हम ऑनेस्टी को अपने समझ भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते हैं। ऐसा भी होता है। होता है सर, विकारों में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, स्वाभाविक है। और ये रियलाइजेशन करवाने के लिए ही हमारे पास शास्त्र होते हैं, ये रियलाइजेशन करवाने के लिए हमारे पास टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, जिनके सहारे, जिनको पढ़कर या फिर जिनको सुनकर हमें ये रियलाइजेशन रेगुलरली होना चाहिए। और ये हेल्प करता है, एक अच्छे गुरु का होना, एक अच्छे मित्र का होना, एक अच्छे शास्त्र को पढ़ना। करेक्ट सर, वेरी करेक्ट। सो सर, आई होप सर और मैम जिन्होंने भी सवाल पूछा, आई होप मैंने कुछ टिप्पणियां बताई मैं, जिससे आप कुछ और सोच सको उस बारे में। सो ऑनेस्टी के खिलाफ नहीं है नीति, ऑनेस्टी के खिलाफ, बट ऑनेस्टी की परिभाषा बहुत गहरी है और उसका उपयोग भी एक नीति है, किस हद तक करना है, किस हद तक नहीं करना। कृष्ण जब जाते हैं ना हस्तिनापुर, तो उनका जो इंटरेक्शन है, जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं विदुर से, धृतराष्ट्र से, भीष्म से, दुर्योधन से,
और कर्ण से, ये पांचों संवाद अलग होते हैं, एक तरीके के नहीं रहते। क्यों? कृष्ण जानते हैं वो किससे बात कर रहे हैं और वही सही नहीं है। भीष्म से क्या बातें कर सकते हैं, शायद दुर्योधन से उस लिहाज से बात नहीं कर सकते, शायद उस हिसाब से धृतराष्ट्र से बात नहीं कर सकते। वो व्यक्ति तो पूरे मोह में डूबा हुआ है, उससे क्या धर्म की बात करें इस हद तक। So hence there is that clarity we should. Okay, thank you sir. I just Yes, sir. Thank जी you so मैम, very जी। much. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for great session. Acha, it's still continuing by the way. I have Thank you very much, sir. five more minutes. I'll just complete it, then we can take a break. It's okay? Thank you very much. Yeah, Okay, sure. Oh, sir. my Sure. pleasure. Yeah. So just give me 5 minutes just to introduce us to Panchatantra, and then we will meet after 15 minutes of time, because second session is also mine. Okay. Yes, sir. We'll wind it up just for everybody's information. We'll wind it up by 1:30. After next 5 minutes, we will take a break between 12 to 12:15. 12 Okay, to sir. 12:15 का ब्रेक लेंगे, 12:15 को हम दोबारा मिलेंगे और 1:30 को हम वाइंड अप करेंगे. Okay? जी सर. So let's see what is पंचतंत्र. Okay? मैं बस आपको बता दूं, ये जो कहानी है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस ये जो कहानी हाँ, है, सर। थैंक यू, ये पंचतंत्र से ली गई है। और पंचतंत्र को हम इस नज़र से देखते हैं कि पंचतंत्र के बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी है। आज के डेट में भी, इतने सालों बाद भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि क्या आप ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए ले लोगे? मेरा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, मेरे स्कूल के किड्स। मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई ये बच्चों की किताब नहीं है, एक सर्टन एज चाहिए जिसके बाद आप इसको डिटेल में समझ सको। हाँ, बच्चों के लिए कहानी सुना दो, बस कहानी सुना दो, वो कहानी याद रहे तो फिर किसी वक्त वो बड़े होने के बाद उस कहानी पे विचार करके समझेंगे कि कहानी में ऐसा क्यों था। बट ये पूरी तरह कहानी ऐसी नहीं है। ये बनाया ही गया है इस तरीके से ताकि हम अपने व्यवहार को, अपने नीति को समझ सकें। पंचतंत्र की कहानी ऐसी है, करीबन 2-3 हज़ार साल पहले, 2000 साल जो ज़्यादातर लोग कहते हैं, एक राजा था अमर शक्ति करके, जिसका एक राज्य था महिल्या रूपम। अमर शक्ति बहुत ही काबिल राजा था, अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था। उससे एक भूल हो गई, एक चूक हो गई कि उसने अपने सक्सेशन का प्लानिंग नहीं किया। मेरे बाद मेरे गद्दी पे कौन बैठेगा, मेरी प्रजा की भलाई कौन सोचेगा, इसके बारे में प्लानिंग नहीं किया था। इसके लिए उसके 3 बच्चे थे, अनंत शक्ति, बाहु शक्ति, उग्र शक्ति। ये तीनों 14 से लेके 20 साल के बीच के थे, बट फिर भी इनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, शास्त्र का नॉलेज नहीं था, धर्म का ज्ञात नहीं था, नीति क्या होती है कुछ नहीं समझता, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। अब अमर शक्ति के सामने ये एक बड़ा चैलेंज था कि इन तीनों को मैं कैसे समझाऊं, कैसे पढ़ाऊं, ताकि इनके दिमाग में कुछ तो ज्ञान जाए, ताकि इनके बाद, मेरे बाद एटलीस्ट कोई तो राजपाट संभालने लायक बने। तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था सुमति। सुमति ने राजा को सुझाव दिया, राजा जी, हमारे देश में, हमारे राज्य में एक आचार्य विष्णु शर्मा नाम के एक बहुत ही काबिल शिक्षक हैं। उनको अगर हम बुलाएं, उनसे अगर हम रिक्वेस्ट करें तो शायद वो हमारा कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो आचार्य विष्णु शर्मा जी को बुलाया गया, उनको कहा गया कि देखो हमारे 3 बेटे हैं और इनको आप अगर अपने शरण में ले लो, किसी तरह इनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दो कि एटलीस्ट इनमें से एक कोई राजा बन जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो आचार्य विष्णु शर्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं इनको आश्रम में लेके जाता हूँ, 6 महीने चाहिए मुझे, 6 महीने। तो राजा जी कहते हैं कि 6 महीने तो पॉसिबल नहीं है, 6 महीने में थोड़ी ये सीख जाएंगे, आप ज़्यादा टाइम ले लो। वो बोलते नहीं, मैं 6 महीने में कर दूंगा। तो 6 महीने लेके जाते हैं, इनको ट्रेनिंग करवाते हैं और 6 महीने बाद लेके आते हैं और 6 महीने बाद एग्जामिनेशन होता है, इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि बाप रे, इन्होंने तो सब सीख लिया, जो सवाल पूछ रहे हो तीनों के तीनों सही जवाब दे रहे हैं, टैक्सेशन कितना होना चाहिए सही बता रहे हैं,
कंपटीशन को कैसे हैंडल करना चाहिए सही बता रहे हैं, देन मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करना चाहिए सही बता रहे हैं, सारे आंसर सीख के 6 महीने में कैसे सीखा इन्होंने। तो आचार्य विष्णु शर्मा जी ने बड़ा यूनिक तरीका अपनाया था इनको सिखाने के लिए, वो तरीका था कहानियों के माध्यम से। और आचार्य विष्णु शर्मा जी ने अपने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डॉक्यूमेंट किया, और वो जो डॉक्यूमेंट किया था वो डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कहानियों की किताब नहीं, हर फ्यूचर जनरेशन की लीडरशिप को या फिर एक अच्छे नागरिक को तैयार करने का एक मैनुअल है, एक एब्सोल्यूट मैनुअल है। ये है पंचतंत्र। अब पंचतंत्र के अंदर क्या है, क्यों उसको पंचतंत्र कहा जाता है, और पंचतंत्र की एक और ब्यूटीफुल सी कहानी लेकर, और दो, आज एक नहीं, एक दो और कहानी, एक कहानी एटलीस्ट है, एक और ब्यूटीफुल सी कहानी लेकर हम 12-15 को दोबारा मिलेंगे, ठीक है? 12:15 विल स्टार्ट अगेन। आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। Okay, sir. Thank you so much, sir. Wonderful session. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. बढ़िया Thank you, sir. Thank you. We meet Friends? again at 12:15. Okay, I'm Yes, sir. sending you. Yes. 12:15 को शुरू करते हैं. Friends, you don't Yes, leave ma'am. the meeting. Just take break of 15 minutes. Thank you, Don't sir. leave the Thank you. meeting. Thank you. ठीक है, थैंक यू मैम।